Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. Class, today we will fill the exercises of the chapter pronouns. So let's start. First of all, you will mention the date. It is compulsory. Then we will start our exercise number 1. So what we have to do, we have to fill pronoun according to the place. If it is coming if it is coming at subject place, so when we will start this exercise, you have to keep in your mind, if the pronoun is coming in place of subject, so we will fill the subject form, and if it is coming in place of object, then we will fill ऑब्जेक्ट फॉर्म. जो आपके पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़े थे, उनके दो टाइप होते हैं, या तो ऐसा सब्जेक्ट यूज़ होते हैं या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं. अगर सब्जेक्ट फॉर्म अलग होती हैं प्रोनाउन की और ऑब्जेक्ट फॉर्म अलग हो सकती हैं, आप कॉपी में देख सकते हैं. तो अगर आपको लगता है वो वर्ब से पहले आ रहा है, अगर वर्ब से पहले आता है तो वो सब्जेक्ट फॉर्म में, और वर्ब के बाद जाएगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में. ठीक है, अगर वर्ब के पहले है तो इट इज़ सब्जेक्ट, एंड आफ्टर वर्ब इट इज़ ऑब्जेक्ट. तो वी हैव टू फिल द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म. So and Ram and dash were present. As you can see, before verb we have to fill. So what I have written, I, because me is object form and I is subject form. So we have filled I here. You are smaller than him. So as it is coming in the place of object, so we have written here him, as he is the subject form. I know that it was her. Again it is coming after verb, it means object form, and she is subject form, so we have written here her. He is taller than me. Again we have to fill object form, and me is the object form. Let you and me, as you all know, these are passive voice, and with let we always use object form. let के साथ हमेशा object form यूज़ होती है. कुछ सेंटेंसेस आपके अलग होते हैं. जो let के सेंटेंस होते हैं उनके साथ we always use object form. let me, let him, let her, let us, let them, or we always use object form. Okay, then you know that as well as me. We are not so poor as them. Object form. Ram is as old as me. He is known to my brother and me. They are far better singer than us. Whom can I trust if not him? Let him. Again let is always used with object form of pronoun him, so I have used here him. तो what we have done, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया है, ईदर एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट. या तो सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ हुई है या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन. Okay, then now we will fill the next exercise. That is what we have to do. We have to underline the pronoun, and we have to tell that it is reflexive or emphatic, as both are same. वही एडजेक्टिव कभी एज अ एम्फेटिक यूज़ होता है और कभी कभी एज अ रिफ्लेक्सिव. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, जब मैंने बताया था कि जब वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, देखिए सब्जेक्ट आया उसके जस्ट बाद आपका ये प्रोनाउन आ जाएगा, तो वो क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा. और अगर वो वर्ब के बाद में जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको ऐसे इट सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, ये दिस कैन बी यूज इन बोथ टाइप. ये दोनों तरह से यूज़ होते हैं. एज अ एम्फेटिक भी यूज़ होते हैं और एज अ रिफ्लेक्सिव भी यूज़ होते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस? जब हम इनका एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं. और जब इनको हम सब्जेक्ट पर फोर्स देने के लिए यूज़ करते हैं तो हम ये क्या होते हैं, आपके इम्फेटिक होते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आए तो वो इम्फेटिक है, और वो वर्ब के बाद चला जाए तो वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव. सो लेट्स स्टार्ट. सो the dog choked itself. Choke is the verb and it is coming as object place. So what is it? It is reflexive. Then we seldom see. Again ourself is coming after verb see, so it is reflexive again. Then a house divided, again itself, again divided is verb and it is coming after verb, so it is reflexive. Then x-rays
it is coming just after subject, so it is emphatic. Then I myself again coming just after the subject, so it is emphatic. Then himself just coming after subject, so it is emphatic. So the use is very easy when it just comes after subject, बिल्कुल subject के बाद आ जाता है तो वो आपका emphatic होता है, else वो क्या होता है आपका reflexive होता है. Now what we have to do here, some italic वर्ड्स क्या होते हैं, जो हल्के से आपके तिरछे या स्लैंट लिखे होते हैं, दीज आर इटैलिक वर्ड्स. तो यहाँ पे प्रोनाउन को उन्होंने इटैलिक में लिखा हुआ है, एंड वी हैव टू टेल वेदर इट इज़ इंडेफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड और डिस्ट्रीब्यूटिव. यू कैन यूज़ योर कॉपी में आपका लिखा हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नन आपका क्या है, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर समथिंग, सो इट इज़ इंडेफिनिट. देन दैट is demonstrative as this, that, these, those, these are demonstrative. Now class, third question is wrong. That book is yours. Here that is your adjective. यहाँ जो थर्ड आपका स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, इस पे जो that लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर बाद वर्ब आनी चाहिए. अगर नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. ठीक है, तो जैसे सेकेंड सेंटेंस में देखिए दैट के बाद यहाँ पे इज़ आ गया है, तो ये प्रोनाउन है. अगर यहाँ पे लिखा होता दैट गेट और फिर आपकी वर्ब आती तो ये भी एडजेक्टिव हो जाता. तो प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए. अगर नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है. ये सेंटेंस जो है आपका ये रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे हमने क्रॉस कर. यहाँ पे इसमें आपका एक प्रोनाउन है, लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ 3 प्रोनाउन पूछे हैं, पजेसिव प्रोनाउन नहीं पूछा है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को क्रॉस कर दिया है. इन्होंने पजेसिव प्रोनाउन नहीं पूछा है. योर्स जो है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने इस प्रोनाउन के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस. क्योंकि जो यहाँ पे दैट जो इटैलिक में लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है. देन वन मस्ट नॉट ऑलवेज प्रे, वन आपका इट इज़ नॉट डेफिनिट, सो इट इज़ इनडेफिनिट. Some is also indefinite. Then as you all know, each, every, either or neither, these are distributive. So either is distributive, then each also distributive, each other also distributive, and such is indefinite, and those is demonstrative. Okay, so and at last we will fill the relative pronoun. As we have told relative pronoun are used in middle of 2 sentence. relative pronoun जो होते हैं वो 2 सेंटेंस के बीच में होते हैं, और ये दोनों सेंटेंस में किसी एक चीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं. अगर वो किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो जैसे तो उसके लिए हम हु और हुज और हुम का यूज़ करेंगे. कोई जगह है तो वेयर यूज़ करेंगे. टाइम को रिलेट कर रहा है तो व्हेन यूज़ करेंगे. कोई रीज़न है तो वाई यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ या एनिमल है तो हम विच और दैट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट्स द नेम ऑफ द मैन कार यू बोरोड. एज यू कैन सी द हियर मैन इज़ रिलेटिंग द कार एंड नेम ऑफ द मैन. तो व्हाट वी विल, लेकिन हेयर वी कैन नॉट फिल हु, क्योंकि हमें हु नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एज ए एडजेक्टिव यूज़ करना है, कार से रिलेट करना है. तो आप पढ़ेंगे वॉज द मैन ऑफ द मैन, हु कार नहीं होगा, हुज कार होगा, तुमने हुज लिख दिया. जैसे हु, हुज और होम, दीज आर यूज फॉर पर्सन. A pacifist is a person who, not where the person who believes words are wrong, and a pacifist is a person, both are relating, so we have, and it is a person, so we have used here who. The place की बात हुई है तो simply we will write where. I don't know the name of the woman to whom, again to whom it is a object form, so I spoke on the phone, it is a person. रॉन एंड जेसिका हु, अगेन ये पर्सन है इसलिए हमने हु यूज़ किया. फिर देयर हाउस, हाउस इज़ अ थिंग, सो वी हैव यूज्ड हेयर विच. वी कैन ऑल्सो यूज़ हेयर दैट भी यहाँ पे सही होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे हम देयर न्यू हाउस दैट भी लिख सकते हैं, विच भी, बोथ आर करेक्ट. सो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होंगे. नाउ योर एक्सरसाइजेज आर कंप्लीटेड, एंड टुमारो आई विल सेंड यू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर. ग्रामर का ही एक चैप्टर आपको आई विल टीच. ओके, सो as you can see I have mentioned here on each date on each exercise. आपको भी डेट हर जगह फिल करनी है. ओके, थैंक यू.